فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ سینئر کانگریس قائد و سابق وزیر محمد علی شبیر، جنہیں ریاستی حکومت نے SC ST BC اور اقلیتی محکمہ جات کا مشیر اعلیٰ مقرر کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کے منشور میں دیے گئے تیقنات پر عمل آوری، بالخصوص اقلیتوں کے لیے 4000 کروڑ روپے فنڈز مختص کرانے کے لیے حکومت سے نمائندگی کرنا ان کی اولین ترجیحات ہوں گی۔ حکومت کا مشیر اعلیٰ مقرر کیے جانے کے ایک دن بعد محمد علی شبیر نے جوبلی ہلز میں واقع اپنے مکان میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، اور جہاں انہیں مبارکباد دینے والوں کا تانتا باندھا ہوا تھا۔ محمد علی شبیر نے کہا ہے کہ انہیں فخر ہے کہ ریاست کے 85% عوام SC ST BC اور مائنورٹی طبقات کے مسائل کو حل کرنے اور حکومت کو تجاویز پیش کرنے کا انہیں ایک بہترین موقع دیا گیا، جس کے لیے وہ چیف منسٹر ریونت ریڈی اور کانگریس ہائی کمان کے مشکور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں سابق میں مختلف وزارتوں میں کام کرنے کا موقع ملا ہے، بالخصوص مسلمانوں کو 4% تحفظات کی فراہمی، اقلیتی پیشہ ورانہ اور کالجز سے ٹمبرز اسکولز کے قیام، اقلیتی طلباء کو اسکالرشپ اور فیس ریمبرسمنٹ کی اجرائی، جس سے 20 لاکھ اقلیتی طلباء کو فائدہ پہنچا۔ چنانچہ وہ اپنے عہد کا جائزہ حاصل کرنے کے بعد SC ST BC اور اقلیتی محکمہ جات کے سیکریٹریز کا ایک اجلاس طلب کر رہے اور ان طبقات کے مسائل سے واقفیت حاصل کریں گے اور مجوزہ سالانہ بجٹ میں پارٹی منشور کے مطابق فنڈز مختص کرنے کے مسئلے پر بھی تبادلہ خیال کریں گے، جس کے بعد ایک رپورٹ حکومت کو پیش کریں گے۔ AISF تلنگانہ اسٹیٹ کونسل کے زیر اہتمام OU آرٹس کالج میں دستخطوں کا ایک مجموعہ لیا گیا، جس میں نئی قومی تعلیمی پالیسی کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کرنے والے پروفیسر قاسم نے کہا کہ وہ تعلیم عامہ کو مکمل طور پر تباہ کرنے اور غریب اور متوسط طبقے کو تعلیم سے محروم کرنے کی سازش کر رہے اور نئی قومی تعلیمی پالیسی 2020 کو مرکز میں لایا گیا۔ اس کے حصے کے طور پر انہوں نے کہا کہ مرکز تعلیم کو کارپوریٹائز اور پرائیویٹائز کرنے کی سازش کر رہا۔ قاسم نے اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ ملک میں قومی تعلیمی نظام کی وجہ سے تقریباً 90% طلباء معیاری تعلیم کے اپنے حق سے محروم ہو جائیں گے۔ ارباب حکومت کے فرقہ پرست ہونے یا پھر لا اینڈ آرڈر پر حکومت کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے، تبھی اشرار کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، وہ شرارتوں پر اتر آتے ہیں اور غیر قانونی حرکتیں کرتے ہوئے لوگوں کی جان و مال کو نقصان پہنچانے لگتے ہیں۔ ریاست تلنگانہ جو اپنی تاسیس سے امن و امان کا گہوارہ بنی ہوئی تھی، اب ایسا لگتا ہے کہ تبدیلی حکومت کے ساتھ اشرار کو یہ لگنے لگا کہ انہیں منمانی کرنے کا موقع مل چکا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ رام مندر کے افتتاح کی آڑ میں نکالی گئی ایک ریلی میں چیف منسٹر ریونت ریڈی کے حلقہ اسمبلی کوڑنگل کے موضع کوسگی میں اشرار نے مسجد کے سامنے مظاہرہ کرتے ہوئے مسجد پر چپلیں پھینکی۔ سپریم کورٹ سے بابری مسجد رام جنم بھومی تنازع کے فیصلے ہو جانے کے بعد ایودھیا میں بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کی افتتاحی تقریب کی مناسبت سے ریاست بھر میں ہندو برادری کی جانب سے جشن منایا گیا تھا اور جگہ جگہ مختلف ریلیاں منظم کی گئی تھی۔ ریاست کے مختلف مقامات پر رات دیر گئے تک ریلیاں نکالی گئیں اور نوجوان اشتعال انگیز نعرے لگاتے گئے۔ کوسگی، نارائن پیٹ اور دولت آباد سنگاریڈی میں اشرار نے شرانگیزی کا مظاہرہ کیا۔ دولت آباد میں اشتعال انگیز نعرے لگاتے ہوئے اشرار نے ایک مسلم پھل فروش کی دکان کو آگ لگا دی۔ اشرار نے مسلمانوں کے پاکستان چلے جانے کے نعرے لگائے۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں سے بات چیت کی اور اشرار کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ یہاں پر یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ کوسگی سے موصول اطلاع کے مطابق اشرار نے نماز عشاء کے موقع پر مدینہ مسجد کے روبرو ہنگامہ آرائی کی اور چپلیں اور کھنڈوے مسجد کی طرف پھینکتے ہوئے اشتعال انگیزی کی۔ یہ سب کارروائی سب انسپکٹر کوسگی کی موجودگی میں کی گئی اور مقامی مسلمانوں نے شکایت کی کہ وہ خاموش تماشائی بنے رہے اور اشرار کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔
कांग्रेस हुकूमत की जानिब से एक और गारंटी स्कीम पर अमलावरी के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि फरवरी के महीने से 200 यूनिट तक मुफ्त बरक़ी के वादे पर अमल किया जाएगा। उन्होंने गांधी भवन में कांग्रेस इंतखाबी मंशूर कमेटी के इजलास में शिरकत की। उनके हमरा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। बादजा कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि माक़बल इंतखाबात किए गए तमाम वादों को अंदरून 100 दिन पूरा किया जाएगा। उनके मुताबिक केसीआर हुकूमत की वजह से रियासत कर्ज के दलदल में डूब गई, इसलिए वादों पर अमलावरी में ताखीर हो रही। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि पार्लिमानी इंतखाबात में बीआरएस को एक भी निशस्त हासिल नहीं होगी। कालेश्वरम समेत तमाम बदउनवानियों की तहकीकात करवाई जाएगी। आबकारी के सर्कल इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के जिले महबूब नगर के जडचल्ला आबकारी सर्कल इंस्पेक्टर बालाजी को महकमे इंसदाद रिश्वत सतानी के ओहदेदारों ने रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इस ओहदेदार ने पोतुला मडगो गाँव से ताल्लुक रखने वाले तिरुपतिया नामी शराब का कारोबार करने वाले शख्स से लाइसेंस के लिए 90,000 रुपए रिश्वत तलब की है। उसने 25,000 रुपए की रकम पहले ही हासिल कर ली। वो बकाया रकम 65,000 रुपए ले रहा था कि उसको पकड़ लिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश के मौके पर तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने ट्वीट करते हुए नेताजी के वो अल्फाज याद किए कि जदोजहद ना हो तो आधी जिंदगी ज़ाय हो जाती है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि नेताजी ने अपने जज्बे के साथ अनारकी वाली ताकतों के खिलाफ लड़ने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा है कि नेताजी की यौम पैदाइश को मुल्क में यौम बहादुरी के तौर पर मनाया जा रहा है, वहीं हमें इस मुहिब वतन की खिदमत को याद किया जाना चाहिए। राजधानी दिल्ली समेत पूरे शुमाली हिंद में कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा वबाल जान बना हुआ है। गुज़िश्ता कल के मुकाबले आज सुबह सर्दी और कोहरा कुछ ज़्यादा ही रहा, जिसकी वजह से हद-ए-निगाह में ज़बरदस्त कमी दर्ज की गई। कोहरे का ज़्यादा असर रेलवे और हवाई खिदमात पर पड़ रहा, जिसकी वजह से ट्रेनें और हवाई जहाज़ों की आमद व रफ्त में ताख़ीर हो रही। घने कोहरे से रोड ट्रांसपोर्ट, ट्रेनें और हवाई खिदमात हनूज़ मुतासिर हैं। यूँ तो मुल्क की बेशतर रियासतों पर इसका असर पड़ा है, लेकिन शुमाली हिंद पर कुछ ज्यादा ही है। खबर के मुताबिक घने कोहरे की वजह से शुमाली हिंद की तकरीबन 28 ट्रेनें ताखिर से चल रही हैं, जबकि हवाई खिदमत भी बुरी तरह मुतासिर हुई। मिली इत्तला के मुताबिक जो ट्रेनें 28 मुतासिर हुई हैं, उनमें से बेशतर 1 घंटे से लेकर 6 घंटे की ताखिर से चल रही। कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ानों में देर हो रही है। यूपी के आगरा में हद-निगाह की सतह 0 तक आ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में कम अज कम दर्ज हरारत 7 डिग्री और ज्यादा से ज्यादा 18 डिग्री सेल्सियस रहा। मुल्क के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली आने वाली 28 ट्रेनें 1 से 6 घंटे की ताखिर से चल रही। आंध्र प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने हड़ताल खत्म कर दी, क्योंकि रियासती हुकूमत ने उनके अहम मुतालिबात को पूरा करने पर रजामंदी जाहिर कर दी, जिसके साथ ही गुज़िश्ता 42 दिनों से रियासत गिर एहतजाज करने वाले इन वर्कर्स ने ऐलान किया कि वो अपनी हड़ताल खत्म कर रहे। वज़ीर तालीम बी सत्यनारायण और हुकूमत के मुशीर अवामी उमूर एस रामकृष्णा रेड्डी के साथ मुलाकात के बाद यूनियन के लीडरों ने ऐलान किया कि रियासती हुकूमत ने उनके बाज़ मुतालिबात पर मुस्बित जवाब दिया है, जिसके बाद उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म करने का फैसला किया है। यूनियन लीडरों ने वजाहत की कि हुकूमत जुलाई में उनकी तनख्वाहों में इजाफे के मामले पर गौर करने और उन्हें तहरीरी तौर पर यकीन दहानी करवाने के लिए राजी है। उन्होंने निशानदेही की कि उन्होंने रियासती हुकूमत से कहा है कि वो एहतजाज के दौरान अमले के खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस ले और उनकी तनख्वाहें भी अदा करे, जिस पर सत्यनारायण ने उन्हें बताया कि इस मसले को वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी के इल्म में लाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत आंगनवाड़ी अमले की सुबकदोशी की उम्र को 62 साल तक करने और उनके लिए YSR बीमा की सहूलत में तोसी करने पर राजी है। हुकूमत ने आंगनवाड़ी वर्कर्स की सुबकदोशी के फवायद में इजाफा करने से भी इत्तफाक किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की क़ियादत वाली बीजेपी हुकूमत के हिंदू परस्त मुतसबाना इक़दामात जारी हैं और मोदी हुकूमत हिंदुस्तान को सेक्युलर रियासत जाहिर करने में नाकाम हो गई है। नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद हिंदुस्तान सेक्युलर रियासत होने का मुकाम खो बैठा। अमरीकी मीडिया ब्लूमबर्ग के मुताबिक बीजेपी ने हिंदुस्तान में बढ़ती हुई कौम परस्ती का भरपूर फायदा उठाया, जिसकी वाज़ेह मिसाल राम मंदिर की तामीर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 के इंतखाबात में कामयाबी मोदी को कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने और राम मंदिर की तामीर के वादे पर मिली। 2014 से अब तक मोदी का इक़्तिदार में आने के लिए हिंदुत्व नज़रिया एक हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। 2024 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए बीजेपी हुकूमत के एजेंडे में मुतनाज़ मंदिर की तामीर शामिल है। राम मंदिर की तामीर के वादे पर मोदी अपनी सियासत चमकाते रहे। ब्लूमबर्ग ने कहा है कि बीजेपी पिछले 10 साल से जारी करप्शन, मौशी बहरान, बेरोजगारी और महंगाई को खत्म करने में नाकाम रही। मोदी ने 2024 के इंतखाबात में कामयाबी के बाद हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने, मुतनाज़ मंदिरों की तामीर और मुसलमानों पर जमीन मजीद तंग करने का वादा किया है। हरमैन शरीफैन में ज़ायरीन के लिए सहूलतों में इजाफा और गुंजाइश बढ़ाने का अमल हमेशा चलता रहता है, तो दूसरी जानिब ज़ायरीन की तादाद में इजाफे का सिलसिला भी जारी है। मस्जिद नबवी के इंतज़ामिया का कहना है कि 2023 के दौरान 280 मिलियन से ज़्यादा ज़ायरीन ने मुख्तलिफ सहूलतों से फ़ायदा उठाते हुए रूहानी माहौल में मस्जिद नबवी में हाज़िरी दी। सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक मस्जिद नबवी इंतज़ामिया का कहना है कि नमाजियों की आसानी के लिए मियारी खिदमात की फराहमी और राहत रसानी के जुमला वसाइल मुहैया करने की कोशिश की जा रही, ताकि ज़ायरीन इत्मीनान व सुकून के साथ इबादत कर सकें। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने कहा है कि गजा की पट्टी फ़लस्तीनी हुकूमत का हिस्सा और फ़लस्तीनी अवाम की नागुज़ेर तरजीहात में से एक है। फ़लस्तीन के सरकारी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने रमल्ला में मशरिक़ वसत अमन कलीसा कौंसिल के वफ़द से मुलाकात की है। मुलाकात में उन्होंने कहा है कि गजा की पट्टी फ़लस्तीनी हुकूमत का एक नागुज़ीर हिस्सा है। काबिज़ हुकूमत का गजा की पट्टी या इसके किसी भी हिस्से को तकसीम करने का मनसूबा नाकाबिल कबूल और नाकाबिल गौर है। अब्बास ने इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा फ़लस्तीनी महसूलात असासों की और उन महसूलात की वापस फ़लस्तीनी हुकाम को मुंतक़ली की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि हम गजा से हरगिज़ पीछे नहीं हटेंगे। गजा फ़लस्तीनी अवाम की अवलीन तरजीह है। गजा की पट्टी के अवाम फ़लस्तीनी हुकूमत की जिम्मेदारी है। फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारिजा रियाज़ अल मालकी ने भी गजा में इंसानी सूरत हाल की संजीदगी और इसमें फ़ौरी मदाखलत की ज़रूरत पर जोर दिया और यूरोपीय यूनियन से फ़ौरी फायर बंदी की अपील की है। उन्होंने मुतालबा किया कि दो हुकूमती हल की मुखालिफत की वजह से इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर पाबंदियां लगाई जाएं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ,
విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాళీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.